Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Commerce Tutorpedia. In this video, we are going to discuss about regression analysis. We have already completed correlation and coefficient of correlations, and these are must-to-do topics for UGC NET, JRF and SET exams. My name is Jyoti Sharma, and if you find these videos helpful, then I would request you all to like, share and subscribe Commerce Tutorpedia. So let us start with the meaning of regression. So regression is used to establish relationship between two or more variables. As such, it is a bivariate analysis. Now let us first clear it out that regression is used to establish the relationship between two or more variables, and as there are two variables, that is why it is also known as bivariate analysis. Now, it may be said that correlation measures the degree of relationship. Okay, we have already completed correlation, so you must know that correlation measures the degree of relationship, but regression analysis shows how the variable are related. All right, now let us discuss the types of variables. There are basically two types of variables. First is dependent and the other one is independent. Dependent variable is dependent upon the independent variable. Now let us talk about the coefficient of correlation and regression analysis differences. This is very important, तो आप ये एकदम ध्यान से देख के सुनेंगे इसको. फर्स्ट टॉपिक इज First point of difference is degree and nature of relationship. When we are talking about correlation coefficient, it measures the degree of covariance, or we can say relationship between two variables, whereas regression analysis study about the nature of relationship about the variable, so that one may be able to estimate or predicate the value of another. Now cause and effect relationship, it says that correlation merely ascertain the degree of relationship. Okay, therefore one cannot say that one variable is the cause or the other is the effect. Although in regression analysis, one variable is taken as dependent variable while the other is independent variable. Thus it is possible to establish the cause and effect relationship. Now ascertainment of dependent and independent relationship, the value of coefficient of correlation है ना, measures the direction and degree of relationship. When we are talking about this, they are ascertaining the direction and degree of relationship between two variables. However, in the case of regression analysis, the value of regression coefficients are not symmetric. ठीक है, अब ये हमें समझना है कि जब हम लोग coefficient of correlation की बात कर रहे हैं, वहां पर उन दोनों के बीच में symmetrical relationship हो सकता है, but in case of regression analysis it can't be not symmetric. ठीक है, कभी भी आपका जो coefficients होते हैं वो equal नहीं होते. Symmetry का मतलब होते हैं equal होना. ठीक है, तो आप क्या है कि इसके अंदर ये चीज पता लगा सकते हो कि कौन सा इंडिपेंडेंट है कौन सा डिपेंडेंट है, वेयर एज इन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इट इज नॉट पॉसिबल. नाउ मीनिंगफुलनेस का मतलब ये हुआ कि जो कोरिलेशन होता है वो नॉनसेंस कोरिलेशन भी हो सकता है. ठीक है ना, विच इज ड्यू टू मेनली चांस के कारण हो जाए कोई, लेकिन फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर जैसे कोई इनकम का दे रखा है, इंक्रीज इन इनकम एंड इंक्रीज इन एनवायरमेंटल टेम्परेचर, दोनों को मतलब वो क्या कर देगा, कोरिलेट कर देगा कैसे भी करके. लेकिन रिग्रेशन एनालिसिस में यूजफुल मीनिंगफुल क्या होते हैं, यूज किए जाते हैं कंपैरिजंस. ओके, फिफ्थ पॉइंट इज सिग्निफिकेंस ऑफ ओरिजिन, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट among the differences. Significance of origin का मतलब क्या होता है आपके पास, the value of coefficient of correlation is independent of scale and point of origin. ये मैं उसमें भी बोली थी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी भी बोल रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है. However, regression coefficient are independent of change. अब मैं यहाँ लिख देती हूँ, जो regression के coefficient होते हैं वो independent है changes के, but not of scale.
रिग्रेशन कोएफिशिएंट इंडिपेंडेंट ऑफ origin, बट नॉट स्केल। origin का मतलब है, अब देखो मैं एकदम सिंपल भाषा में समझा रही हूँ कि आपको कोई भी डेटा दे रखा है, अगर आपको उसमें कोई प्लस माइनस करना है तो रिग्रेशन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, देयर विल बी नो चेंज। बट इफ यू आर डिवाइडिंग इट बाय समथिंग एंड मल्टीप्लाई इट बाय समथिंग, देन देयर विल बी चेंजेस। ओके, तो ये चीज क्लियर रखना है। प्रेडिक्शन का मतलब ये होता है व्हाइल पॉइंटिंग आउट द डिफरेंस बिटवीन रिग्रेशन एंड कोरिलेशन, कि ये दोनों क्या होते हैं, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप को मतलब अनेबल करते हैं फॉर द प्रेडिक्शन। कौन? रिग्रेशन, ना कि कोवेरियंस। ऑल राइट, नाउ लेट अस एक्सप्लेन कि ये पढ़ते कैसे हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ रिग्रेशन लाइंस, जब हमें ये दे रखा होता है y ऑन x, तो हमें ये समझना है कि ये जो y होता है, ये सॉरी x जो होता है इसके अंदर, जब मैंने बोला y ऑन x, तो x क्या है? एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि y इज डिपेंडेंट ऑन x। तो उसको आप कैसे लिखोगे? y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, a एंड b आर कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स, whereas on x on y, ये अगर मैं बोल रही हूं तो यहाँ पे x जो है आपके पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है ऑन y। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, कि कभी कभी केवल एक भी रिग्रेशन लाइन बन सकती है, ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है। अब कब बन सकती है? व्हेन देयर इज परफेक्ट कोरिलेशन बिटवीन टू सीरीज, एकदम परफेक्ट कोरिलेशन चल रहे हैं। व्हेन r इज इक्वल टू प्लस या -1, द रिग्रेशन लाइन विल कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब क्या होता है? ऐसे करके मतलब एक ही लाइन बन जाएगी पूरी की पूरी ये, ठीक है। इन सच अ केस देयर विल बी ओनली वन रिग्रेशन लाइन। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, मतलब इनमें से कौन से केस के अंदर एक ही रिग्रेशन लाइन बनेगी? तो हमें पता होना चाहिए, जहां जब परफेक्ट कोरिलेशन बन जाता है तो वहां पर एक ही रिग्रेशन लाइन होती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं हम लोग इसके अंदर। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज, ओके, रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स कैसे निकाले जाते हैं? रिग्रेशन कोएफिशिएंट पहले तो आप समझिए कि बी एक्स वाई और बी वाई एक्स को बोलते हैं। बी एक्स वाई का मतलब होता है व्हेन एक्स इज ऑन वाई, मतलब एक्स डिपेंडेंट ऑन वाई। तो आप कैसे निकालोगे? ये है आपके पास कोरिलेशन इनटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, और वेयर एज व्हेन इट इज गिवन दैट वाई इज ऑन एक्स, देन बी वाई एक्स निकालना है आपको। जब ये तो आपका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन तो सेम रहेगा, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x लिखा जाएगा। अगर आपको इक्वेशन निकालने के लिए बोल दी जाए, रिग्रेशन इक्वेशन क्या होती है, और आपको x ऑन y निकालनी है, तो ये समझ लीजिए, देखो इक्वेशन बनानी है, देयर विल बी x एंड y जो कि कांस्टेंट ही रखने हैं आपको, इनके अंदर कोई वैल्यू नहीं डालनी आपको, उसमें से माइनस करना है मीन ऑफ x सीरीज, और इक्वल्स टू ये आपके पास b, अब एक्स वाई हो गया, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन हो गया, y माइनस में y ऑफ मीन हो गया। अब अगर आपको y ऑन x की इक्वेशन बनानी है तो y माइनस में y मीन इक्वल्स टू बी वाई एक्स हो गया आपके पास, और x माइनस में x बार। इजी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई भी चीज नहीं क्लियर हो तो क्लियरली आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आगे है डेटर्मिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट, और ये सबसे ज्यादा रिपीटिंग टॉपिक है आपका कि कोएफिशिएंट इज, अब अगर सेंटेंस में आ जाए तो हमें पता होना चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट। दैट मीन्स अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली तो अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स इक्वल्स टू क्या होता है? आर होता है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट पे, नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन्स जो उस फॉर्मूले से निकल के आते हैं। तो वैल्यू ऑफ आर जो होती है कैन नेवर बी मोर देन 1, कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। सो प्रोडक्ट ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी क्या नहीं हो सकता? मोर देन 1 नहीं हो सकता। बोथ रिग्रेशन कोएफिशिएंट शुड बी या तो पॉजिटिव ही रहेंगे या नेगेटिव रहेंगे, ठीक है। इसी देखो, साइन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट डिपेंड ऑन साइन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ओके। एक और टॉपिक आता है इसके अंदर हमारे पास जो कि है स्टैंडर्ड एरर। तो रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y अगर दे रखा है और आपको स्टैंडर्ड एरर निकालना है x ऑन y का, तो फॉर्मूला होता है सिग्मा x माइनस में एस सी स्क्वायर अपॉन में n, ठीक है। और स्टैंडर्ड एक्स वाई
एक और फॉर्मूले से निकल सकता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स √1 माइनस में आर स्क्वायर। इसी तरीके से वाई ऑन एक्स दे रखा है तो स्टैंडर्ड मतलब आपको स्टैंडर्ड एरर निकालना है वाई ऑन एक्स, तो आप निकाल सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई √1 माइनस में आर स्क्वायर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको, और क्वेश्चन प्रैक्टिकली भी आ सकते हैं आपके पास। ऑलराइट, सो दैट इज इट गाइस। ये पूरा का पूरा चैप्टर था जो मैं इतने से टाइम के लिए आपके लिए लेके आई हूँ। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको क्वेश्चंस पूछने हो, वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।